So far we have derived equation up to 5 in previous lecture. अब देखिए कि पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने 5 इक्वेशन जो है वो डिराइव करवाई हैं, तो एक बार उन पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन क्या है देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां उनको नोट कर रहा हूं, नोट्स तो मैं यहां से लिखने हैं, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R E डॉट dr प्लस माइनस फ्रॉम R टू स्मॉल r E in dot dr. Clear? This is first equation. Infinity to R E dot dr plus minus R capital R to small r E in dot dr. This is first equation. Now what is second equation? हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट dr. This is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r. Clear? This is equation second. So what is third? Third equation is minus capital R to small r E in dot dr. This is equal to, ये हमने इक्वेशन फिफ्थ ली थी, तो इक्वेशन क्या थी फिफ्थ, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू R स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2. क्लियर? दिस इज इक्वेशन फिफ्थ. तो ऐसे 1 2 3 4 5 फिफ्थ इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें सेकंड इक्वेशन जो इसकी वैल्यू है एंड फिफ्थ इक्वेशन जो इसकी वैल्यू है को फर्स्ट में पुट करना है. तो यहां से आपको नोट करना है कॉपी में, जो पिछला आपने नोट किया था. तो देखिए उसके जस्ट आगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, वी गेट, क्या मिलता है आपको, वी गेट v equal what is value of this is equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R. What is value of this? The value here is minus Q upon 4 pi epsilon naught R cube into, this is equal to R square upon 2 minus capital R square upon 2. Clear? But v equal, we take common as Q upon 4 pi epsilon naught R, then result will be 1 minus 1 upon R square. Clear? 4 pi epsilon naught R, then remaining R square will here into R square by 2 minus R square by 2. Clear? So we can take common as Q upon 4 pi epsilon naught R. Now V equal Q upon 4 pi epsilon naught R. Here result will be 1 minus R square upon 2 R square, multiply by this, so there will be minus minus plus 1 upon R square into R square by 2, so R square cancel out. The result is Q upon 4 pi epsilon naught R. 1, there will be 1 by 2. So 1 by 2 or 1 plus 1 by 2, this is 3 by 2. Clear? 1 upon 1, this is 1 by 2. So this is 3 by 2 minus R square upon 2 R square.
एंड V equal Q upon 4 pi epsilon naught R and LCM is 2R square. So this term will be 3R square minus this will be R square. This is potential inside, so we can write as V in. This is inside potential in a uniformly charged non-conducting sphere. This is equation 6. Now we can put a condition for which we can find out potential at center. सेंटर पर पोटेंशियल हम निकालना चाहें तो क्या करें, तो P पॉइंट को हम सेंटर पर पहुंचा दें, देन स्मॉल r विल बी 0, देन V वैल्यू ऑफ V विल बी इक्वल टू एट सेंटर. तो फिर यहां लिखेंगे इफ कंडीशन है इफ r इक्वल 0 देन VC, क्योंकि r की वैल्यू 0 करने का मतलब P पॉइंट कहां चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा. तो VC इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 3R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर. So we can write R square is cancelled out. So VC equal Q 3/2, क्योंकि there will be 3/2, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. लेकिन what is this? This is potential at surface. So we can write VC equal 3/2 VS. Hence VS equal Q upon 4 pi epsilon naught R. Clear? Now you can write VC equal 1.5 into VS. So what is the result? Potential at center is 1.5 times of potential at surface. किसी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सरफेस के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स होता है. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके पास में, तो ये हम लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 7 इक्वेशन. क्लियर? नोट इट, इसको आप नोट कर लीजिए. तो इस तरीके से हमारे पास में ये तो आ गया इनसाइड, और ये आ गया आपके पास में सेंटर पर जो कि इनसाइड पॉइंट है, और ये कंपैरिजन हो गई किससे, सरफेस से. नाउ वी हैव टू ड्रा ए ग्राफ बिटवीन V एंड R. तो V और R के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आप इसे तो नोट कर लीजिएगा. मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. Graphical representation between V and R. Graphical representation between V and small r. कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, उससे पहले हम इस रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट रिजल्ट क्या था, इफ r is greater than capital R then V equal Q upon 4 pi epsilon naught R. Here for outside point V is proportional 1 upon R. रिजल्ट था कि नहीं था. फॉर सेकंड केस, इफ R is capital R के इक्वल है तो सरफेस पे हमने VS निकाला था, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो फिर VS कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स, द पॉइंट्स लाइज एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर. नंबर थर्ड था इफ R इज लेस देन कैपिटल R, तब V इनसाइड रिजल्ट आया था
Q upon 4 pi epsilon naught R into 3R square minus R square upon 2R square. Clear? This is result for inside. और in terms of सेंटर की हमने बात की थी, तो फिर सेंटर की हाँ V जो है इनसाइड वो कैसे चेंज होता है R के साथ, वो ये फंक्शन है आपके पास में। लेकिन एक बात और आई थी आपके पास में कि एट सेंटर 1.5 टाइम्स ऑफ VS, ये बात भी आई थी। तो अब हम इन तीनों सिचुएशन के लिए यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें V एंड R, ये उनके फंक्शंस हैं, तो फिर मैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वी कंसीडर दिस इज नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, दिस इज सेंटर O, दिस इज y axis, this is x axis. So this distance will be equal to capital R, this is small r, this is potential V. Now this region is R is greater than capital R, or this region is R is small r, but at surface the value corresponding to V will be Vs, but outside V inversely proportional R, then the portion of graph will be as V inversely proportional R. But if we move inside, this is charged non-conducting sphere, लेकिन यदि हम उसके इनसाइड जाएं, ये पॉइंट P पहले यहाँ था, फिर इसके सरफेस पे आए, फिर हम इनसाइड जाएं, तो इनसाइड जाएंगे तब बिहेव ऐसा होगा, और सेंटर पे पहुंचेंगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ VS हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर पर तो ज्यादा है, तो फिर आप सरफेस से कहां जा रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर V की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ R स्क्वायर है, तो ये लीनियर ग्राफ न होकर के ये ग्राफ जो है आपके पास में कर्व शेप होगा, और ये हम सेंटर पर पहुंच गए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ग्राफ कैसे आया। देखिएगा, आप सरफेस पे आइए, सरफेस पे वैल्यू कितनी है, VS है, लेकिन सरफेस से आप बाहर जाइए, सरफेस से बाहर जाएंगे तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, जैसे जैसे R की डिस्टेंस बढ़ेगी V की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन आप इनसाइड जाइए, अब इनसाइड जो है वो कोई लीनियर बिहेव तो है नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इट मीन्स हमें एक हेल्प चाहिए कि VC कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ VS। इसका मतलब सेंटर पर पहुंचते पहुंचते हमें 1.5 टाइम्स हो जाएगा किसका, VS का। तो फिर हम इनसाइड जब चलने लगे और जैसे जैसे हम सेंटर पर पहुंचे तब VC की जो वैल्यू आई वो 1.5 VS आ गई। 1 VC इक्वल 1.5 VS। तो फिर इस तरीके से ये ग्राफ का जो है वो पोर्शन होगा। तो यू कैन नोट दिस ग्राफ फॉर these थ्री सिचुएशंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको तो आपको नोट नहीं करना, लेकिन इसको मेमोरी में डालना है। लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, नोट कीजिए। Now we take next article. तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system, potential energy of a system of point charges. So what do you mean by potential energy of a system of point charges? और potential energy क्या है? तो मैं एक बार से इसको मैं आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवा रहा हूं, ध्यान देना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज दिस इज चार्ज Q1, ठीक,
हमने इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहां ला करके बिठाया. There is no electric field surrounding in this surrounding. This point is A. Suppose this is point. There is no electric field and charge Q1 is situated at infinity. But if we move charge Q1 towards A, यदि Q1 चार्ज को हम A पर लाएं तो हमें कितना कम वर्क करना पड़ा, तो वो जो वर्क होगा वो वर्क इक्वल चार्ज कितना लेकर के आ रहे हैं Q1. But there is no electric field, then there will be no potential, so this work will be zero. Potential will be zero. So work equal charge into potential. This work will be zero. ठीक, किसको? Q1 चार्ज को आप यहां लाएंगे तब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉइंट ए था, उसके सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या था? जीरो, और जीरो था तो फिर उस केस में वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल जीरो हो गया. बट सपोज कीजिए ये आपके पास में जो है वो आर डिस्टेंस है और ये कोई पॉइंट बी है, और यहां हम कोई Q2 चार्ज को यहां लाना चाहते हैं, लेकिन Q1 ऑलरेडी बैठ चुका, तो फिर इस बी पॉइंट के ऊपर Q2 चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फिर WB कितना चार्ज लेकर के आ रहे हैं? Q2 इनटू पोटेंशियल किसी वजह से होगा? A वाले चार्ज की वजह से, इट मींस VA, A की वजह से पोटेंशियल, लेकिन WB इक्वल Q2 इनटू में व्हाट इज VA? Q1 चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा? तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, तो फिर WB इक्वल कितना हो गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो फिर एक बार से फिर से आप देख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल. पहले आप किस चार्ज को लेकर के आए? Q1 को. A पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब आपको वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि पोटेंशियल भी नहीं था वहां, तो इट मींस WA चार्ज इनटू पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू जीरो. लेकिन जब आप Q1 को बिठा चुके और इन्फिनिटी से यदि Q2 को B पॉइंट पे लाएंगे तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा WB इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल. चार्ज कितना लेकर के आ रहे हो? Q2, और पोटेंशियल किसी वजह से ये ऑलरेडी बैठ चुका, इट मींस पोटेंशियल ड्यू टू A, दिस इज VA. बट due to charge Q1, what will be potential at B? So we can write Q1 upon 4 pi epsilon R. Clear? Now WB will be this. So this is equation second, this is first. So what is total work done? What is total work done? W equal WA plus WB. Clear? W equal 0, WA की वैल्यू, and Q plus Q1 Q2 upon में 4 pi epsilon naught R. Then W equal Q1 Q2 upon में 4 pi epsilon naught R. But this work done is equal to potential energy of charge system. This work done is potential energy of charge system. तो आपको पता लग गया होगा कि हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालेंगे. तो ये तो थी इस आर्टिकल की बैकग्राउंड, लेकिन पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं. देखिए कैसे. तो what is potential energy of point charges? तो write down electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy of system of point charges is defined as. कैसे डिफाइन करेंगे? क्या बताया मैंने? ये एक सिस्टम की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं. तो इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, द टोटल अमाउंट एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ work done in bringing
total amount of work done in bringing, ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप नोट करते जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ point charges is defined as the total amount of work done in bringing the various charges various charges। क्यों? क्योंकि सिस्टम है तो वहां वेरियस चार्ज होंगे, वेरियस चार्जेज होंगे टू their respective, क्योंकि पॉइंट सिस्टम और पॉइंट चार्ज है तो वेरियस जो है वो चार्ज होंगे टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से लाने के लिए? इन्फिनिटी से लाने के लिए। फ्रॉम इन्फिनिटी लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। तो एक बार आप इसको रीड कीजिए, लार्ज म्यूचुअल सेपरेशंस, ठीक है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट वर्क डन। कितना करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने WA और WB टोटल वर्क डन W किया था, WA प्लस WB, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस, जैसे Q1 ला रहे थे, Q2 ला रहे थे, तो फिर ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पोजीशंस। वो रेस्पेक्टिव पोजीशंस क्या थी? वो पोजीशन थी A थी, B थी, वहां तक लाने के लिए फ्रॉम कहां से? इन्फिनिटी से, जहां वो जो चार्ज थे Q1 और Q2 वो लार्ज सेपरेशन पे थे, उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंट्रैक्शन नहीं थी, वो लार्ज सेपरेशन पे मौजूद थे। तो उनमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहते हैं। तो फिर इस डेफिनेशन को आप फिर से देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of a system of point charges is defined as the total amount of work done in bringing the various charges to their respective positions from infinity large mutual separations, जो कि large mutual separation पे थे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अब हम अलग अलग सिचुएशन में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो फिर मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं 2 पॉइंट चार्ज के लिए। पोटेंशियल एनर्जी of potential energy of 2 point charges, potential energy of 2 point charges system। क्लियर? तो फिर कैसे निकलेंगे? देखिए, suppose this point is A and this point is B। इनके ऊपर चार्ज Q1 लाना है एट इंफिनिटी। ये Q1 एंड Q2 जो चार्ज हैं वो लार्ज सेपरेशन पे हैं और एट इंफिनिटी है।
तो पहले Q1 को A तक लाएं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट A, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग point charge Q1 at A, work done in bringing point charge Q1 from infinity से लाएंगे at A, so WA equal, we can write charge Q1 and potential at A, but A and B जो दो पॉइंट्स है वो ऐसे कहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देयर विल बी नो पोटेंशियल, सो WA इक्वल Q1 into 0, so WA equal 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर चार्ज Q1 कहाँ गया, ये चार्ज Q1 आ गया, लेकिन A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो R है। तो फिर अब हम किसको लेकर के आए, Q1 को तो कहां लेके आ गए, A पर, अब Q2 को कहां लेकर के आए, B पर। तो फिर ये लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज Q2 एट B, तो WB इक्वल चार्ज कितना लेकर के आए, Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, किस पर पोटेंशियल, B.1, ड्यू टू चार्ज Q1 एट A, क्योंकि अभी Q1 पहले आ चुका, देन WB कैसे लिखेंगे, WB इक्वल Q2, तो व्हाट इज पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, सो फार्मूला इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, देन WB इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल है, W इक्वल WA प्लस WB, दिस इज इक्वेशन थर्ड, बाय यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो टोटल वर्क डन W इक्वल 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्लियर। बट वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल W इक्वल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दिस इज इक्वेशन 4, दिस विल बी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये टोटल वर्क डन हो गया। तो फिर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, 2 पॉइंट सिस्टम चार्ज की वजह से हम किस तरीके से जो है वो पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर U इक्वल, ये आपके पास टोटल वर्क डन, तो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है कि इनको अलग अलग लाने के लिए जब ये म्यूचुअल सेपरेशन पे है और इन्फिनिटी से इनको A पॉइंट्स या उनके रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे लाने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ता है, वो वर्क डन जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम कहलाती है। तो फिर ये आर्टिकल तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वाला आर्टिकल वो है 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट जो है आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज तक बस इतना ही आपको जो है वो नोट करना है। थैंक यू।